حیض کے غسل کے بارے میں ایک دلچسپ حدیث۔ آخر ایک انصاری خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا پوچھ لیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کے مارے چھپ گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، انصار کی عورتیں بھی کیا عمدہ عورتیں تھیں، وہ دین کی بات پوچھنے میں شرم نہیں کرتی تھیں۔ کنواری کو شرمگاہ کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں اور شادی شدہ کو اتنی دور تک پانی پہنچانا واجب ہے جس قدر حاجت کے لیے بیٹھنے میں کھلتا ہے۔ انسائیڈ اسلام میں آپ کا خیر مقدم، سواگتم اور ویلکم ہے۔ ہم نے پچھلی 3 ویڈیوز میں حیض سے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ جن حضرات نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے ان سے گزارش ہے کہ پہلے انہیں دیکھ لیں تاکہ مضمون کے تسلسل کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرات یہ جان لیں کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی اس چینل کو بند کرانے کے لیے یوٹیوب کو غلط رپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا کام پسند ہے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد کامنٹ باکس میں کم سے کم 1-2 لفظ ضرور لکھیے یا ایک آدھ پازیٹیو ایموجی بھیج دیجیے جس سے یوٹیوب کو اس چینل کے بارے میں پازیٹیو میسج جائے۔ اسی طرح یہ بھی جان لیجئے کہ ہم نے کامنٹ سیکشن میں فلٹر لگا رکھا ہے، اس لیے کوئی بھی کسی دوسرے ریلیجن اور کمیونٹی کے بارے میں ایسے جملے نہ لکھیں جو ہیٹ اسپیچ یا ان اپروپریٹ لینگویج کے زمرے میں آتے ہوں، ورنہ آپ کا کمنٹ خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گا یا شو نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت برباد ہو۔ اسی طرح کچھ مسلمان بھائی علم کا جواب علم سے دینے کے بجائے یہاں گالی گلوچ لکھنا ثواب سمجھتے ہیں، تو وہ بھی سن لیں کہ آپ کی بھینس پانی میں چلی جاتی ہے۔ تو آج ہم پھر سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتاب الحیض کی چند احادیث کا تنقیدی جائزہ لیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ان حدیثوں کا اصلی مقصد اسلام کی دعوت و تبلیغ ہے یا کچھ اور ایجنڈا۔ تو بنا تاخیر کے بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے شائع کردہ صحیح بخاری کا اردو ترجمہ ہے۔ ترجمہ اور تشریح مولانا محمد داؤد راز کے ہیں۔ یہ بخاری کی کتاب نمبر 6 کتاب الحیض ہے۔ انگریزی والے اسے sunna.com میں اور بخاری کے دیگر انگریزی ترجمے میں بک نمبر 6 دا بک آف مینسز اور مینسٹرول پیریڈز کے تحت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الحیض کا باب نمبر 13 ہے۔ باب اس بارے میں کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت کو اپنے بدن کو نہاتے وقت ملنا چاہیے اور یہ کہ عورت کیسے غسل کرے اور مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر خون لگی ہوئی جگہوں پر اسے پھیرے۔ حدیث نمبر 314 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک انصاریہ عورت یعنی مدینے کے انصاری برادری کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ ویسے کسی خاتون کو عورت کہنا خاتون کی توہین ہے، کیونکہ عربی ڈکشنری میں عورت کا معنی ننگا اور چھپانے کی چیز ہے۔ اسی لیے اسلامی لٹریچر میں عورت جسم کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جسے چھپانا ضروری ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک عورت کہلاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مولانا حضرات خواتین کو عورت بولنے اور لکھنے میں فخر سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک انصاریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر۔ یہاں ترجمہ میں لکھا ہوا ہے اس نے دوبارہ پوچھا، جبکہ ہونا چاہیے تھا اس نے تیسری بار پوچھا کہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ اس حدیث کے پورے سیاق سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انصاریہ صحابیہ بہت ہی بھولی بھالی تھیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حیض کے غسل کا جو طریقہ سکھایا یہ اپنے بھولے پن کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہی تھیں اور بار بار سوال کرتی جا رہی تھی کہ کیسے پاکی حاصل کروں، کیسے پاکی حاصل کروں۔ بظاہر ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ انصاریہ خاتون بھولی بھالی نہیں تھیں، کیونکہ نہانا اور غسل کرنا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جسے سیکھا جائے، بلکہ انسان اسے بچپن ہی سے سیکھ لیتا ہے۔ مسئلہ دراصل حیض کے غسل کے بارے میں تھا، یعنی یہ خاتون حیض کے غسل کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ کیا اسلام میں حیض کے غسل کا طریقہ الگ اور منفرد ہے یا پھر عام غسل کی طرح ہے۔
تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اب یہ طریقہ اس خاتون کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مشک میں بسے ہوئے کپڑے سے کیسے حیض کا غسل کیا جائے، کیونکہ غسل کرنے کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے نہ کہ مشک میں بسے ہوئے کپڑے کا۔ اس لیے یہ خاتون بار بار پوچھ رہی تھی کہ مشک میں بسے ہوئے کپڑے سے کیسے پاکی حاصل کروں۔ جب فتویٰ بار بار سمجھانے کے باوجود سمجھ میں نہیں آیا اور پاس میں موجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے محسوس کیا کہ فتویٰ خطرناک زون کی طرف جا رہا ہے، اس لیے بیچ میں حضرت عائشہ کو انٹرفیئر کرنی پڑی۔ چنانچہ آگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر۔ اب بتائیے کہ کیا یہ فتویٰ پوچھنے والی انصاریہ خاتون بھولی تھیں؟ نہیں، یہ بھولی نہیں تھی، کیونکہ کپڑے میں مشک لگا کر اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیرنا یہ ایک نیا اور انوکھا طریقہ تھا، اس لیے انہیں یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب آپ حضرات کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خون لگی ہوئی جگہوں سے کیا مراد ہے۔ یہی حدیث بخاری کے اگلے باب نمبر 14 حیض کا غسل کیوں کر ہو، حدیث نمبر 315 میں ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انصاریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر۔ یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ مطلب یہ کہ اس انصاریہ عورت نے رسول اللہ سے 3 بار پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں، اور رسول اللہ نے 3 بار جواب دیا کہ ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر۔ آگے حدیث میں ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا یا فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر۔ آگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے اسے کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہنا چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی۔ اب اس حدیث پر میرے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب غیر مسلم اسکالرز کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے تو علماء اسلام اس کے دفاع میں یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اتنی زیادہ شادیاں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے مقصد سے کی تھیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اتنی زیادہ شادیاں اس لیے کی تھیں کہ تاکہ آپ کی بیویاں آپ کے گھر کے اندر کی باتیں امت تک پہنچانے میں آپ کی مددگار بنے اور مسلم خواتین کو دین سمجھائیں، خاص کر دین کی وہ تعلیمات جو خواتین سے متعلق ہیں وغیرہ۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ انصاری خاتون نے حیض کے غسل کا طریقہ حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں سے کیوں نہیں سیکھا، اور وہ کیوں سیدھے رسول اللہ سے حیض کے غسل کا طریقہ سیکھنے چلی گئی جبکہ حضرت عائشہ وہیں پاس موجود تھی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ اس انصاری عورت کو سمجھ نہیں تھی، اس لیے وہ حیض کے غسل کا طریقہ رسول اللہ کی بیویوں سے سیکھنے کے بجائے سیدھے رسول اللہ سے سیکھنے چلی گئیں، لیکن رسول اللہ تو ایسے نہیں تھے نا۔ وہ تو اس خاتون کو روک سکتے تھے اور فرما سکتے تھے کہ عورتوں کے ان خاص مسائل و احکام کو سمجھانے کے لیے میں نے 11 بیویوں سے شادیاں کی ہیں، اس لیے تم عورتیں اسلام کی یہ باتیں مجھ سے سیکھنے کے بجائے میری بیویوں سے سیکھو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بقول علماء اسلام رسول اللہ اس انصاری صحابیہ کو دین سکھا رہے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شرما گئے؟ کیا دین سمجھانا اور دین سکھانا شرم کی بات ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد ہونے کے باوجود شرما گئے تو اس انصاری صحابیہ کو شرم کیوں نہیں آئی؟ کیا حضرت عائشہ یہ تاثر دینا چاہتی ہیں کہ قبیلہ انصار کی عورتیں بے شرم تھیں؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ جب نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ رسول اللہ شرما گئے اور شرمندگی کے مارے اپنا چہرہ پھیر لیا اور حضرت عائشہ نے مجبوراً اس عورت کو کھینچ کر دور کی اور پھر انہیں رسول اللہ کا مقصد سمجھایا کہ دیکھو یہ جو مشک میں بسا ہوا کپڑا ہے اسے ان جگہوں پر پھیرو جہاں جہاں خون لگا ہوا ہے، یعنی شرم گاہ کے چاروں طرف۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ جب عورتوں کو دین سکھانے کی بات گھوم پھر کر حضرت عائشہ تک جا پہنچی تو پھر رسول اللہ نے پہلے ہی اس کے لیے حضرت عائشہ کو آگے کیوں نہیں کیا کہ عائشہ یہ تمہارا میدان ہے، لو اپنا میدان سنبھالو۔
अब इसी हदीस को सही मुस्लिम में पढ़ते हैं। ये खालिद एहसान पब्लिशर्स लाहौर का शाये करदा सही मुस्लिम का उर्दू तर्जमा है। मुतरजिम अल्लामा वहीदुज़्ज़मान है। किताब हैज के मसाइल, बाब नंबर 13। जो औरत हैज का गुस्ल करे वह एक टुकड़ा कपड़े या रुई का मुश्क लगाकर खून के मकाम पर इस्तेमाल करे तो मुस्तहब है। हदीस नंबर 448। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हैज से क्यों कर गुस्ल करूं? आपने सिखाया उसको गुस्ल करना। यहाँ हदीस के इन अल्फाज पर ध्यान दीजिए कि आपने सिखाया उसको गुस्ल करना। क्या आपको अजीब नहीं लगता है कि एक औरत हैज के गुस्ल का तरीका एक मर्द से पूछ रही है और वो मर्द उसको हैज के गुस्ल का तरीका सिखा भी रहे हैं? खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आपने सिखाया उसको गुस्ल करना, फिर फरमाया, यानी फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुश्क लगा हुआ एक फोहा ले और उससे पाकी कर। वह बोली, क्यों कर पाकी करूं? आपने फरमाया, सुबहान अल्लाह, पाकी कर। अब यहाँ मुतरजिम ने सुबहान अल्लाह के बाद ब्रैकेट में लिखा है, सुबहान अल्लाह ऐसी जाहिर बात भी नहीं समझती, पाकी कर। मतलब ये है कि रसूलुल्लाह ने सुबहान अल्लाह ताज्जुब से कहा, यानी ऐसी जाहिर बात भी नहीं समझती, पाकी कर उससे। और आड़ कर ली आपने, यानी रसूलुल्लाह ने आड़ कर ली। आड़ कर ली यानी रसूलुल्लाह छुप गए, क्योंकि अरबी इबारत इस तरह है, ततहरी बिहा सुबहान अल्लाह वस्ततर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहान अल्लाह, इससे पाकी हासिल कर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप गए। रसूलुल्लाह की इस कैफियत को हदीस के मशहूर रावी इमाम सुफियान ने अपने शागिर्दों को करके बताया है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। लिखा है, सुफियान ने बतलाया हमको हाथ अपना मुंह पर रख कर, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, यानी शर्म से आपने ऐसा किया। मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्म के मारे अपना हाथ मुंह पर रख लिया और छुप गए, और इसी कैफियत को इमाम सुफियान ने अपने शागिर्दों को करके बताया कि रसूलुल्लाह इस तरह शर्म के मारे अपना हाथ चेहरे पर रखा। अब आगे देखिए, हजरत आयशा ने कहा, मैंने उस औरत को अपनी तरफ खींचा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब मैं पहचान गई थी। मैंने कहा, उस फोए को खून के मकाम पर लगा। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, यानी शर्मगाह पर। तो हदीस के इस दिलचस्प टुकड़े को फिर से पढ़ते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब मैं पहचान गई थी। मैंने कहा, उस फोए को खून के मकाम पर लगा, यानी शर्मगाह पर। माशा अल्लाह। और ये सही मुस्लिम के इसी बाब की हदीस नंबर 750 है। उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अस्मा शकल की बेटी या अस्मा यजीद बिन सकन की बेटी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हैज का गुस्ल क्यों कर करूं? आपने फरमाया कि पहले पानी बेरी के पत्तों के साथ लेवे और उससे अच्छी तरह पाकी करे। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, यानी हैज का खून जो लगा हुआ हो धोवे और साफ करे, फिर सर पर पानी डाले और खूब जोर से मले, यहाँ तक के पानी मांगों यानी बालों की जड़ों में पहुंच जाए, फिर अपने ऊपर पानी डाले, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, यानी सारे बदन पर। फिर एक फाहा रुई या कपड़े का मुश्क लगा हुआ लेकर उससे पाकी करे। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, क्यों कर पाकी करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, पाकी करे। अब आगे हदीस का एक दिलचस्प टुकड़ा पढ़िए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने चुपके से कह दिया कि खून के मकाम पर लगा दे। हदीस में आगे लिखा है, फिर उसने जनाबत के गुस्ल को पूछा। जनाबत यानी नापाकी का गुस्ल। फिर उसने जनाबत के गुस्ल को पूछा। आपने फरमाया, पानी लेकर अच्छी तरह तहारत करे, फिर सर पर पानी डाले और मले, यहाँ तक के पानी सब मांगों में पहुंच जाए, फिर अपने सारे बदन पर पानी डाले। अब आगे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ये दिलचस्प तबसरा सुनिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अंसार की औरतें भी क्या उम्दा औरतें थीं, वह दीन की बात पूछने में शर्म नहीं करती थीं। और यहाँ ब्रैकेट में अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने लिखा है, और यही लाजिम है क्योंकि शर्म गुनाह और मासियत में है और दीन की बात पूछना सवाब और अज्र है। वाव, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। कुछ समझा आपने?
इनके फरमाने का मतलब साफ है कि मुकम्मल ग्राफिक डिटेल्स के साथ हैज के गुस्ल का ये तरीका सीखना दीन है और मुस्लिम खवातीन पर लाजिम है कि वो मौलवियों और मुफ्तियों के पास खड़ी होकर खोद खोद कर हैज और गुस्ल के अहकाम सीखें कि पानी कहाँ से कहाँ तक बहाना है और कैसे बहाना है, क्या बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाना जरूरी है या नहीं, कानों, नाकों और होंठों के अंदर तक पानी पहुँचाना है या फिर सिर्फ बाहर से धो लेना है, फिर बाल, नाक, कान और चेहरा मोहरा धोने के बाद सीने को किस तरह धोना है, क्या सीने में पानी बहाते वक्त सीने को भी मलना और हिलाना है या नहीं, और सीने के नीचे पेट में ये जो नाफ है क्या इसके अंदर भी पानी पहुंचाना है या नहीं, क्योंकि अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा सूखा रह गया तो फिर हैज से पाकी हासिल नहीं होगी। अब नाफ के नीचे का जो रेड जोन एरिया है उस पर मुश्क में बसे हुए कपड़े या फोहे को किस तरह फेरा जाए, क्या फोहे को अंदर तक ले जाना है या सिर्फ ऊपर ऊपर फेरना है वगैरह। क्योंकि इन अहादीस और हजरत आयशा और उलमा इस्लाम के मुताबिक दीन सीखने में शर्म नहीं है और इस तरह की दीनी जानकारियां हासिल करना सवाब और नेकी का काम है। लेकिन अल्लामा वहीदुज़्ज़मान मरहूम, फिर सवाल वही है कि जब दीन सीखने में शर्म ना करना लाजिम है तो फिर दीन सिखाने में शर्म ना करना बदरजाए औला लाजिम हुआ, तो फिर दीन सिखाते सिखाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों शर्मा गए थे और शर्मिंदगी की वजह से वो क्यों छुप गए थे। आपके कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम खवातीन दीन सीखने के लिए मौलवियों और मुफ्तियों से ऐसे ऐसे सवाल करे कि मौलवी हजरात तो शर्म के मारे मुंह छुपा ले और मारे शर्म के उछल कर छुप जाए, लेकिन खवातीन को ऐसे फतवे पूछने में शर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि दीन सीखने में शर्म नहीं है और इस तरह के मसाइल सीखना सवाब का काम है। अच्छा, इन हदीसों में पता नहीं क्यों इस बात की सराहत नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने इस अंसारी खातून को गुस्ले जनाबत और हैज का तरीका करके बताया है या नहीं। क्योंकि जब भी इस तरह की हदीसों पर एतराज किया जाता है तो उलमा इस्लाम जवाब देते हैं कि रसूलुल्लाह ने ऐसा उम्मत को तालीम देने के लिए किया है। जैसे खड़े होकर पेशाब करने वाली बुखारी की हदीस कि रसूलुल्लाह ने एक बार एक कौम के कचरेदान के पास खड़े खड़े पेशाब कर दिया था, तो उलमा इस्लाम कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने ऐसा उम्मत को तालीम देने के लिए किया था कि जरूरत के वक्त खड़े खड़े पेशाब करना जायज है। या फिर बुखारी की वो हदीस जिसमें है कि हजरत आयशा ने अपने दो मर्द शागिर्दों के सामने नहाकर गुस्ले जनाबत का तरीका सिखाया था। यहाँ भी उलमा कहते हैं कि हजरत आयशा ने ऐसा सिखाने के लिए किया था। तो अगर ये कायदा सही है तो यहाँ भी इस अंसारिया सहाबिया के लिए करके बताना चाहिए था कि मुश्क में बसे हुए फोए से किस तरह शर्मगाह साफ किया जाता है, ताकि इस भोली भाली मासूम सहाबिया को इसके लिए बार बार पूछना ना पड़ता और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपना पड़ता। शायद इसीलिए ये अंसारी सहाबिया बार बार पूछ रही थी कि मुश्क के पोहे या खुशबूदार रुई से कैसे पाकी हासिल की जाए। शायद ये भी चाहती थी कि इन्हें करके बताया जाए। आप लोग बताइए क्या ऐसा है? यानी ये कि ये अंसारिया खातून भी चाहती थी कि इन्हें करके बताया जाए। अगर उलमा इस्लाम के कायदे को दुरुस्त माना जाए तो इस पॉसिबिलिटी की यहाँ गुंजाइश निकलती है कि हाँ शायद यहाँ भी ऐसा ही था। अब यहाँ हाशिए में अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने लिखा है, ये हुक्म नजाफत और तहारत और पाकीज़गी के लिए है, ना बतौर वजूब की, यानी मुश्क की खुशबूदार फोहे से पाकी हासिल करना मुस्तहब है और वाजिब नहीं है। आगे लिखा है, और निफास के लिए भी ऐसा ही मुस्तहब है। बाजों ने कहा कि मुश्क के इस्तेमाल से नुतफा जल्दी ठहरता है। अच्छा, अगर ये दुरुस्त है तो फिर सवाल है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अज़वाज मुतहरात में से किसी को नुतफा क्यों नहीं ठहरा। खैर, आगे लिखा है, जब मुश्क ना मिले तो और कोई खुशबू इस्तेमाल करे और ये इस्तेमाल गुस्ल के बाद चाहिए। अगर कोई खुशबू ना मिले तो सिर्फ पानी से पाक करना काफी है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, लेकिन बिक्र को
फर्ज के अंदर पानी पहुंचाना जरूरी नहीं और सय्यबा को उतनी दूर तक पानी पहुंचाना वाजिब है जिस कदर हाजत के लिए बैठने में खुलता है। काफी गंभीर मसला है। बिक्र यानी कुंवारी और सय्यबा यानी शादीशुदा और फर्ज यानी शर्मगाह और हाजत यानी कज़ाए हाजत यानी वॉशरूम में बैठते वक्त शर्मगाह का जितना अंदरूनी हिस्सा खुलता है वहां तक पानी पहुंचाना वाजिब है। तो लिखा है लेकिन बिक्र को फर्ज के अंदर पानी पहुंचाना जरूरी नहीं और सय्यबा को उतनी दूर तक पानी पहुंचाना वाजिब है जिस कदर हाजत के लिए बैठने में खुलता है। अब फर्ज के अंदर पानी पहुंचाने में इतनी बारीकी क्यों है मुझे नहीं मालूम। मौलाना जब हैज का खून बिक्र और सय्यबा दोनों के फर्ज से निकलता है तो बिक्र को फर्ज के अंदर पानी पहुंचाना जरूरी नहीं और सय्यबा को उतनी दूर तक पहुंचाना वाजिब है जिस कदर हाजत यानी टॉयलेट के लिए बैठने में खुलता है। क्यों? आखिर इतना बारीक फर्क क्यों? इसका जवाब यह है कि उलमाए इस्लाम की तशरीहात के मुताबिक शर्मगाह के ज़ाहिरी हिस्से को पाक करना जरूरी है और अंदर तक पाक करना जरूरी नहीं है। इसके बाद उलमाए इस्लाम ने कुंवारी और शादीशुदा खवातीन की शर्मगाहों का बारीकी से जायजा लिया और पाया कि जिनसी ताल्लुकात के बाद औरत की शर्मगाह ढीली होकर फैल जाती है जबकि कुंवारी की शर्मगाह असली हालत में मजबूत और टाइट रहती है। इसलिए कज़ाए हाजत के लिए बैठते वक्त शादीशुदा खातून की शर्मगाह का जितना हिस्सा खुलता है वहां तक पानी पहुंचाना जरूरी है। मतलब समझे? एक शादीशुदा खातून जब कज़ाए हाजत के लिए बैठती है तो इनका कहना है कि उनकी शर्मगाह ज्यादा खुलता है ढीली होने की वजह से। तो जब खुद ब खुद ज्यादा खुलेगा तो अंदर तक पानी पहुंचाना जरूरी है। समझा शरीयत के मसाइल में कितनी दिक्कत और बारीकी है। अगर आप इन दिक्कतों और बारीकियों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। अब आप हजरात ही फैसला कीजिए कि हमारे उलमाए दीन को मुस्लिम लड़कियों और औरतों के मखसूस मसाइल में इतने अंदर और गहराई तक घुसने की जरूरत ही क्या है। इतना अंदर और गहराई के सब कुछ नजरों के सामने बरहना हो जाए कि कौन कुंवारी है और कौन शादीशुदा और किसकी फर्ज टाइट है और किसकी ढीली और किसकी फर्ज में कहाँ तक पानी पहुंचाना है और कहाँ तक नहीं। इतने अंदर और गहराई तक आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। इस तरह के उलमाए दिन से हमारी गुजारिश है कि हजरत हैज और शर्मगाह के मसाइल से बाहर निकलिए और मुस्लिम खवातीन की दीगर दर्दनाक परेशानियों के बारे में भी सोचिए। कब तक हैज और फर्ज के मसाइल में घुसे रहेंगे। इस दुनिया में हैज और शर्मगाह के अलावा भी बहुत कुछ है। आज सिर्फ भारत में लाखों मुस्लिम लड़कियां घरों में कुंवारी बैठी हुई अपने वालिदैन के लिए बोझ बन चुकी हैं। कभी फुर्सत निकालकर इनकी शादियों के बारे में भी मुहिम चलाइए और मदरसों और मस्जिदों के लिए चंदे जमा करने के बजाय बेघर मुसलमानों के लिए घर तामीर करने के लिए भी चंदा जमा कीजिए। आप हजरात के रवायती इस्लाम पर अमल करते हुए गरीब मुसलमानों ने घर घर दर्जनों बच्चे पैदा कर लिए लेकिन उनके घरों में आज तक आसमानी रिस्क नहीं आया है। अब ये बेचारे हजारों जिम्मेदारियों के बोझ ढोते ढोते कब्रिस्तान चले जाते हैं लेकिन कभी अल्लाह ने इनके घरों में आसमान से रिस्क नहीं बरसाया। हालांकि ईमान भी लाए, अल्लाह की खातिर मुशरिकों से दुश्मनी भी निभाई, नमाज व रोजों की पाबंदियां भी की, मस्जिद और मदरसे के लिए हर साल चंदे भी दिए लेकिन इनसे किया हुआ रोजी रोटी का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। हाँ, आसपास के 2-3 बच्चे वाले खुशहाल मुसलमानों के घरों में अल्लाह का रिस्क जरूर नाजिल होता है और जब ये गरीब मुसलमान हर तरफ से मायूस होकर अपने उलमा और लीडरों से अपनी मुआशी परेशानियों का शिकवा करते हैं तो हमारे उलमा और लीडरान फरमाते हैं कि इसके जिम्मेदार आरएसएस और बीजेपी सरकार है। मतलब ये कि वादा कोई और करे और जब वादा पूरा ना हो तो मोदी जी को जिम्मेदार ठहराकर पल्लू झाड़ दो। हालांकि मोहन भागवत जी या मोदी जी ने मुसलमानों से कभी भी नहीं कहा है कि रिस्क के बारे में मत सोचो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, हम तुम्हें रिस्क देंगे। गरीब मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तलकीन व तरगीब दिलाने वाले उलमा हजरात जब हर साल अपनी मस्जिद और मदरसे के लिए मुसलमानों से चंदा मांगते हैं तो मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि हमारे उलमाए दीन ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि बजाय मस्जिदों और मदरसों के लिए चंदा जमा करने के वो गरीब मुसलमानों के लिए चंदा जमा करें।
और गरीब मुसलमानों को दुआ देकर काम चलाने के बजाय वो मस्जिदों और मदरसों के लिए दुआ करवाएं। खैर, ये साइड नोट है। अभी हमें ये देखना है कि ये जो आज हमने इन हदीसों को पेश किया है, इनसे मुस्लिम उम्मत को क्या फायदा हुआ है और इन हदीसों का आज क्या वैल्यू है। अगर ये हदीसें ना होती तो क्या मुस्लिम खवातीन को हैज से पाकी व तहारत हासिल करने का तरीका मालूम नहीं होता। आज पूरी दुनिया की अक्सर मुस्लिम खवातीन की तरबियत व तालीम मॉडर्न तरीके से होती है, जहां इन्हें हैज, गुस्ल हैज और शर्मगाह की तहारत वगैरह की तालीम नहीं दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें गुस्ल हैज का तरीका इससे बेहतर तरीके से आता है। इन्हें मालूम है कि कौन सा साबुन और शैम्पू और खुशबू वगैरह इस्तेमाल करनी है। क्या हमारे उलमाए दीन बता सकते हैं कि आज इनके बताए हुए गुस्ल हैज के इस तरीके पर कितनी मुस्लिम खवातीन अमल करती हैं। मॉडर्न खवातीन की बात जाने दीजिए, उन मुस्लिम लड़कियों और मोल्लिमात के बारे में बताएं जो इस्लामी मदरसों में पढ़ती और पढ़ाती हैं कि उनमें से कितनी लड़कियां और मोल्लिमात गुस्ल हैज के इस पैगंबरी तरीके पर अमल करती हैं। यानी यही कि हैज के गुस्ल के लिए पहले बेरी के पत्तों के साथ पानी इस्तेमाल किया जाए और रुई या कपड़े में मुश्क लगाकर खून लगी हुई जगहों पर फेरा जाए। क्या यूरोप व अमेरिका की गैर मुस्लिम खवातीन हैज के बाद साफ सुथरी नहीं होती हैं? उनको किसने सिखाया है कि वो किस तरह हैज के दिनों में अपना ख्याल रखे और कौन सा कपड़ा पहने और कौन सी खुशबू इस्तेमाल करे? क्या इन हदीसों से पहले अरब की खवातीन और खासकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले कुरैश के खवातीन को हैज के गुस्ल का तरीका मालूम नहीं था? क्या गुस्ल हैज के बाद भी उनके जिस्मों से बदबू निकलती थी? मेरे भाई, ये सब खवातीन के मखसूस मसाइल हैं जिन्हें खवातीन अपनी माँ बहनों से सीख लेती हैं कि इन हालतों में अपना ख्याल कैसे रखना है। इसके लिए आसमान से वही नाजिल करने और पैगंबर भेजने की जरूरत नहीं है। आप हजरात ही बताइए कि आखिर एक आसमानी रसूल और नबी को इससे क्या गरज कि औरत हैज का गुस्ल कैसे करे और बेरी के पत्ते से करे या साबुन से करे और जिस्म मले या ना मले और शर्मगाह में मुश्क के फोहे फेरे या ना फेरे। इससे एक नबी को क्या मतलब है? और अगर बकौल उलमा इस्लाम थोड़ी देर के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि ये भी दीन इस्लाम का हिस्सा है, इसलिए रसूल के लिए इस तरह की तालीमात को समझाना जरूरी था, तो ये काम तो हजरत आयशा और दूसरी खवातीन बेहतर तरीके से कर सकती थी ना। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत थी? आप हजरात कमेंट करके बताइए कि क्या ये हदीसें और तालीमात वाकई पैगंबर इस्लाम की तरफ से हैं या ये महज मजहबी दास्तान हैं जिन्हें मुहद्दिसीन और फक़हा इस्लाम ने अपना मजहबी कारोबार चलाने के लिए तदरीजन मुस्लिम समाज में नाफिज किया है।